70 पे आ गया। मैं एक्चुअली 10:40 का था ना, 5 मिनट पहले मैं लेट हो। Good morning, everyone. Very good morning, sir. Okay. Hey, good morning, good morning. So am I audible, visible? Tell me. Am I audible and visible? Yes. Okay. So what we were discussing in the last where is the whiteboard? Okay, so all is well. Let's start. Oh, what is this? We share screen, cancel. What is this? Okay, the whiteboard. Okay. So, hello everyone. Let me change this. Okay. So what did we discuss in the last class? Last class में हमने क्या discuss किया था? Okay, we did that question. Okay, so question number 1 to 20. Any doubt? Is there any doubt in question number 1 to 20? No. So from question number 1 to question number 42, do all the remaining questions. Do all the remaining questions. Okay, this is your homework. So everyone please note down the homework. This we'll discuss tomorrow. Note down the homework and say it's a homework noted. SWN. Type SWN. Everyone just type in SWN. Yeah, that's your homework. Okay. All right. So your homework is question number 1 to 42. You have to do all the remaining questions. All the remaining questions you have to complete. All right. So that's your homework. Okay, good. So please everyone note down and we'll discuss tomorrow. All right. We will discuss this tomorrow. Don't worry. We have already discussed many questions. Right? Only few questions are remaining. I don't think much questions are remaining. 21 से लेकर 25 तक बचा है and last के एक दो बचे. That's all. So it's hardly 5 to 6 questions are remaining. Okay. So we will do that. Okay. Okay. So let us do one question now. Yeah, just 1 minute. What we will do is we will discuss now wedge constraint. Okay. So we are going to discuss now wedge constraint. Okay. So let us start. So we are going to start with wedge constraint. Okay. So let us start with wedge constraint. Okay. Okay. Yogeshwari has raised her hand. What happened, Yogeshwari? चलो let us start with wedge constraint. So पहले हमने डिस्कस किया था string constraint, right? अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं wedge constraint. Okay. Okay. So पहले हमने ये डिस्कस किया था, अब हम लोग wedge constraint डिस्कस करेंगे. So what is a wedge constraint? देखो अगर एक वेज पे एक ब्लॉक रखा है,
तो इन दोनों में एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? What are the conditions? The first condition is that there is a regular contact between two objects. That there is a regular, सब लोग ध्यान से सुनना, ओके? Everyone listen carefully. Listen carefully, okay? So, okay, we have 58 students here. So there is a regular contact between two objects or two surfaces. Just like ये दोनों को कांटेक्ट में रहना ही पड़ेगा. These two have to be in contact, okay? तो ये दोनों जो सरफेस है, ब्लॉक जो है, ठीक है, ब्लॉक जो है और जो ब्लॉक का ये सरफेस है, राइट, दे हैव टू बी इन कांटेक्ट. मतलब दिस नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो. Normal reaction cannot be zero. If the contact is lost, normal reaction will be zero. Right? If the contact is lost, then what will happen? Then the normal reaction will become zero. And the normal reaction will become zero. So normal is not zero. The contact is always there. The contact is always there. That is condition number one. Second is that we are talking about rigid objects. So we are talking about rigid objects. मतलब the objects are rigid. Okay, the objects are rigid. We are talking about rigid objects. All right. So we are talking about the rigid objects. The objects are rigid. Okay. So few students have joined in late. Some students are late. That's very bad. Okay. So objects are rigid. Okay. Now I'll tell you that what is the idea of wedge constant. So this you understood, right? Objects are rigid and there is a contact between two objects. I am not audible, I am audible. Everyone, am I audible and visible? Tell me fast. जिसको ऑडिबल विजिबल नहीं है वो अपना रिफ्रेश करो, ठीक है? अपना खुद का रिफ्रेश करने का भाई. ओके, चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है. कंडीशन ये है, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट plane of the rigid object is always zero. So I'll explain you this. I'll on my video. Okay, all of you look at me. Okay, सब लोग देखो यहाँ, मुझे देखो, देखो ध्यान से देखो. अभी मैंने ये अपने हाथ में रखा है. ये क्या रखा है मेरे हाथ में? क्या है मेरे हाथ में? क्या है? सेलफोन है, मोबाइल है. ओके, गुड गुड गुड. तो देखो अभी ये दो रिजिड है. ये दो क्या है? रिजिड. मेरा हाथ और मेरा मोबाइल, ठीक है, ये दोनों रिजिड है. तो अभी इन दोनों में कांटेक्ट है. इन दोनों में क्या है? अभी इन दोनों में कांटेक्ट है, कांटेक्ट, ठीक है. तो ये जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट के अलोंग, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो कांटेक्ट जो है और ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के अलोंग इनका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? जीरो. इनका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा परपेंडिकुलर के अलोंग. जो वेलोसिटी मोबाइल का होगा वही वेलोसिटी हाथ का होगा, तभी वो कांटेक्ट में रह सकता है, ठीक है. स्मार्टफोन है, ओके. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे यहाँ पे एक हमने मोबाइल रखा है, मोबाइल या कुछ भी रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर, ये जो आप लाइन देख रहे हो, परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो होगा, तभी वो कांटेक्ट में हो सकता है, ठीक है. ये ए है, ये बी है. सब लोग ध्यान से सुनो, पहले एवरीवन सुनो ध्यान से, ठीक है. फॉर फॉर ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी to be in contact, to be in contact, the relative velocity
velocity, that is velocity of A with respect to B along the y axis must be 0. मतलब उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए. मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B along y का मतलब क्या है? मतलब है वेलोसिटी ऑफ A along y माइनस वेलोसिटी ऑफ B along y must be 0. मतलब velocity, the component of velocity of A along y must be equal to the component of velocity of B along y. This is called as wedge constraint. Then that means they will always be together. So जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे मान लो कि जो A है, A का वेलोसिटी ये है VA और B का वेलोसिटी ऐसा है VB. अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रहना है तो A का जो कंपोनेंट होगा, A का कंपोनेंट क्या होगा? देखो, A का कंपोनेंट होगा इधर, ये होगा VAY, ठीक है, और B का ये कंपोनेंट होगा, ये होगा BBY. तो अगर उनको साथ चलना है तो VAY और BBY सेम होने चाहिए, उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. इस केस में ये दोनों साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि VAY ऊपर है, BBY नीचे है, तो दे कैन नॉट स्टे टुगेदर, दे विल बी सेपरेटेड, ओके. समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? बोलो ये सुनो. जैसे यहाँ पे नो सर, यस सर, यस सर, ओके. हाँ ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ आपको. आई अगेन एक्सप्लेन, डोंट वरी. मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर अपने पास एक ये सरफेस है और ये ब्लॉक है, तो फॉर दिस सरफेस एंड ब्लॉक टू बी टुगेदर, सी, फॉर द सरफेस, तो ये सरफेस जो है नीचे वाला, ये ए एंड बी लिख देते हैं, ए एंड बी. So for the blocks to be together, for the blocks to be together, ठीक है, for the blocks to be together, for the blocks to be together, इसका जो velocity है इसके along, ये जो है VAY, और इसका जो velocity है VBY, ये सेम होना चाहिए. VAY and VBY must be same. For the blocks to be together, velocity of A perpendicular to the surface should be equal to velocity of B perpendicular to the surface. नहीं तो क्या होगा? नहीं तो they will lose their contact. Otherwise they will lose their contact. उनका contact छूट जाएगा. This is called as wedge constraint. This is called as wedge constraint. This is called as wedge constraint. Okay. So मैंने ये बोला आपसे कि VAY is equal to VBY होना चाहिए. इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि VAY इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा VAY माइनस VBY इज इक्वल टू 0. मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B का जो y कंपोनेंट है दैट मस्ट बी 0. मतलब रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस मस्ट बी 0. तो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो आपको बस ये पता होना चाहिए, ये दिस इज कॉल्ड एज वेज कंस्ट्रेंट. बस ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वेज कंस्ट्रेंट. सो द रिलेटिव वेलोसिटी, अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगा दे विल लूज देयर कांटेक्ट. इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड दे विल लूज देयर कांटेक्ट. ठीक है. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B must be 0 along the normal. तो ये नॉर्मल है, ये जो आप देख रहे हो y एक्सिस, यहाँ पे जो y एक्सिस है वो क्या है?
वो नॉर्मल है, वाई एक्सिस क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ओके। अभी कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज वेज कंस्ट्रेंट? डिड यू अंडरस्टैंड? वेज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, वो समझ में आया क्या? प्लीज रिप्लाई एनीवन। Somebody please reply. Am I audible, visible? Okay, wait, I think you have replied. Okay, okay, wait. I think I got some replies here. Yes, understood. Yes. Okay. Okay, good. So let us take one example. तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. We'll take one example, ठीक है? So we are going to take one example here. So let us take an example, okay? Something went wrong. Please try again. So लिखो आप लोग, a rod of mass 2m लिखो, a rod of mass 2m moves vertically downward on the surface, moves vertically downward on the surface, of wedge of mass m as shown. Find the relation between velocity of rod. Find the relation between the velocity of rod and that of the wedge at any instant. ओके, तो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम ऐसा दिया है आपको, ये एक वॉल है, ठीक है? तो इस वॉल के अंदर से ऐसा है कि ये रॉड आ रहा है और यहाँ पे ये एक वेज है, वेज। सो यहाँ पे क्या है, एक वेज है, ठीक है? तो ऐसा एक वेज है, ओके ओके। तो इसका मास दिया है 2m, इसका मास दिया है m, और ये नीचे जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये क्या है, ये है फ्रिक्शनलेस। Okay, so we have to find the relation between their velocities. So what we will do, right? First we will assume. So how to solve this? So first what we will do is, first we will assume कि ये जो 2m है, 2m का velocity ऐसा है नीचे, और जो m है इसका velocity इधर है b, ठीक है? Okay, okay. Now how to solve it?
So now we will draw a perpendicular like this. We will draw a perpendicular like this. And we will find their components. We'll find their components. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? We'll find their components. जैसे U का हम निकालेंगे एक component इधर और एक component इधर, ठीक है? V का निकालेंगे एक component इधर, एक component. तो ये जो आप component देख रहे हो, this is along y axis. This is y. So we'll find this velocity of, इसको 1 बोल देते या a बोल देते, a along y. एंड ये होगा b, वेलोसिटी ऑफ b along y. तो इसको इक्वेट करना है, दैट इज कॉल्ड एज वेज कंस्ट्रेंट. तो ये कैसे निकालेंगे? तो आप देखो यहाँ पे ये सरफेस है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये u है. तो ये u है तो ये एंगल थीटा होगा. तो ये क्या होगा? ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा. तो ये आपको मिल गया u cos थीटा. फिर अब ये v है, ये थीटा है, तो ये होगा v cos थीटा और ये होगा v sin थीटा. तो वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है? वेज कंस्ट्रेंट कहता है यूजिंग वेज कंस्ट्रेंट क्या कह सकते हो आप कह सकते हो कि वी ए वाई मस्ट बी इक्वल टू वी बी वाई. बस हो गया सॉल्व. तो वी ए वाई क्या है? यू कॉस थीटा. और वी बी वाई क्या है? वी साइन थीटा. तो ये हो गया, ये आंसर है. अब आप थोड़ा इसको वो कर लो, मतलब सॉल्व कर लो. तो आपको मिल जाएगा u, आपको मिल जाएगा, क्या मिला आपको? आपको मिला है, आपको मिला है u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा. ये मिला है ना? तो u इज इक्वल टू हो जाएगा v साइन बाई कॉस, यानी v tan थीटा. ये क्या आ गया है? v tan थीटा. बोलो समझ में आया सबको? ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन. अब आप नोट डाउन करिए, मैं आपको देता हूं नोट्स. हाँ, स्टार्ट राइटिंग एवरीवन. या एवरीवन प्लीज नोट डाउन. ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन कर लो एंड देन आई विल डिस्कस ऑल योर डाउट्स. या एवरीवन प्लीज नोट डाउन फर्स्ट. Everyone, please note down. Then I'll discuss. Everyone, please note down. Yes, note down fast. Please write down first. Everyone, write down. लिख लो पहले. देखो पहले मैं बोल रहा हूँ लिख लो, ठीक है? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख लो. ये बार बार नॉट अंडरस्टूड मत लिखो यार. मैं क्या बोल रहा हूँ वो करो पहले. मैं बोल रहा हूँ लिखो पहले. ठीक है, देखो नेक्स्ट स्लाइड. पहले लिखते जाओ, कॉपी करो, पहले नोट डाउन करो.
ओके, हो गया, लिख लिया हमने। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। यस, पहले नोट डाउन कर लो यार। अरे जल्दी लिखो यार। ठीक है, ये मैं वापस दिखा रहा हूँ, सेकंड स्लाइड फिर से देखो। जल्दी लिखो जल्दी, पहले लिख लो सब। ओके, देखो नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द थर्ड स्लाइड, प्लीज नोट डाउन दिस इज द थर्ड स्लाइड। ओके, दिस इज द, या दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। इसको लिखो आप सब। ये आपका नेक्स्ट स्लाइड है, लिखो जल्दी। लिखा सबने? सुना रहा है ना आवाज? हाँ। अच्छा, आप लिखो ये नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन वाला स्लाइड है, लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो। कोई बच्चा है क्या? सैयद करके कैसे लिखना है ऐसे? सर्च भी कर सकते। सैयद स्पेलिंग ऐसे आई नहीं है, ए आई से वाई होगा। वो फिजिक्स का दूसरे भी है, आप ही में है। और उसमें भी है। हाँ। सबने नोट किया, नोट डाउन किया सबने ये वाला? ये डायग्राम बना लो सब लोग, प्लीज मेक दिस डायग्राम। प्लीज मेक दिस डायग्राम नीटली, अच्छे से बनाओ ये डायग्राम। सबने नोट डाउन किया?
सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, सबने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, गुड। अगर किसी ने नहीं किया तो बताइए। सबने कर लिया, ठीक है, ये है लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है। ओके, चलो लेट अस नाउ डिस्कस। आवाज नहीं आ रही। हाँ, सब लोग लिख रहे हैं। एक मिनट, आपका हेलो, नाम क्या है? राज। फैजल लिखो, फैजल 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 ना? हाँ हाँ, उसको ऑन करो। ठीक है, आप बोलो। आप अपना माइक ऑन करके बोलो। हाँ बोलो, बोलो सर को, बोलो सर सुन पाएंगे तुमको। हेलो फैजल बोलो। फैजल, आवाज आ रहा है? हेलो फैजल। उसका ही खराब। आई थिंक आपका थोड़ा प्रॉब्लम है, वो आप एयरफोन यूज करो या हेडफोन, देखो यू यूज हेडफोन तो आपको आवाज आएगा। ओके चलो, अब मैं आपको वापस समझाता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। आई अगेन एक्सप्लेन। सबने लिख लिया ना एवरीवन? आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया है या? ओके, देखो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये इस तरह का जो सरफेस बना है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर आपको निकालने हैं वेलोसिटीज, ठीक है? जैसे उसका वेलोसिटी u है, u ऊपर वाले का, और इसका वेलोसिटी हमने v माना है, तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन u एंड v। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन u एंड v, ठीक है? तो अभी ये एंगल थीटा है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों के वेलोसिटीज फाइंड करने हैं y के अलोंग, ये जो y एक्सिस है इसके अलोंग, ये जो नॉर्मल दिख रहा है आपको इसके अलोंग। तो ये एंगल थीटा है तो ये क्या आएगा, तो ये थीटा आएगा, और वो एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। इसमें कोई डाउट है? थीटा में कोई डाउट है? थीटा में, थीटा में कोई डाउट है किसी को? हमको y के अलोंग निकालना है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो आपको दिख रहा है, द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस, द लाइन perpendicular to both the surfaces, ठीक है? द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस, ठीक है? द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस, ओके? तो यहाँ पे u का कंपोनेंट क्या आएगा? u का कंपोनेंट, u का इधर जो कंपोनेंट है वो आएगा u cos थीटा,
ठीक है, तो ये हो गया आपका वी ए का वाई, ए के वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट हो गया। फिर आप क्या ले रहे हो, फिर आप ले रहे हो इसका कंपोनेंट, तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा ऊपर, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा ऊपर वो है v cos थीटा, और इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा ये है v sin थीटा। तो ये v sin थीटा क्या है, ये v sin थीटा है v b y। ओके, तो जो, तो वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है, तो वेज कंस्ट्रेंट कहता है अकॉर्डिंग टू वेज कंस्ट्रेंट, ओके पंकज बोल रहा है अंडरस्टूड, अकॉर्डिंग टू वेज कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेज कंस्ट्रेंट फॉर द ब्लॉक्स टू बी टुगेदर या फॉर द surfaces to remain together, for the surfaces to, for the surfaces to remain together क्या होना चाहिए, for the surfaces to remain together VAY must be equal to VBY। तो VAY क्या है, U cos थीटा, V और VBY क्या है, VBY है V sin थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा U इज इक्वल टू V साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब V tan थीटा। तो ये रिलेशन आ गया, ये जो फाइंड करना था वो रिलेशन आ गया। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। ये जो u है ना, u है वेलोसिटी ऑफ a, और v क्या है, v हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ b। ठीक है, ओके, अगर कोई डाउट है तो बोलो अभी भी। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, so now we are going to start with friction, but I think we can start with friction in the next batch next. So what we will do is we will yeah, this is over, Newton's law of motion is over for Neet, for Neet this is perfectly over, don't worry, okay? Yeah, so we have to just do some more questions. No, no, not circular motion, friction. एक्चुअली वेज आपके सिलेबस में नहीं है, वेज कंस्ट्रेंट इज नॉट देयर इन नीट सिलेबस, वो तो मैंने बस थोड़ा सा बता दिया आपको, वेज के क्वेश्चंस नहीं आते नीट में। या आई विल सेंड यू वन डीपीपी ऑन कंस्ट्रेंट मोशन, ओके? ये देखो इधर, मैं मेरा वीडियो देखो। ओके, सुनो यार सब लोग, सुनो सुनो, अभी कमेंट्स मत लिखो, सुनो। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको डीपीपी सेंड करूंगा, आई विल सेंड यू डीपीपी एंड वी विल डिस्कस योर एक्सरसाइज, आपका जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो बुकलेट है, ठीक है? सो वी विल डिस्कस द बुकलेट and I'll also send you DPP, okay, on the WhatsApp group. So from tomorrow we will discuss your booklet. So आपका जो बुकलेट है उसका एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन है देखो एक बार, जो भी हो एक्सरसाइज 1 के हम फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। तो सब लोग होमवर्क लिख लो, राइट डाउन द होमवर्क, होमवर्क लिखो सब लोग। ठीक है, होमवर्क लिखो। होमवर्क ये है आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का
एक्सरसाइज नीचे रोल नंबर 1 में है राहुल, रोल नंबर 1 में है। ठीक है, भेजूंगा भेजूंगा। आई सेंड द बुलेट। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करना है। ये होमवर्क लिख लीजिए सब लोग। राइट डाउन दिस होमवर्क। ये बुकलेट का होमवर्क है आपका, ठीक है। तो अभी हम लोगों को बुकलेट डिस्कस करना है साथ साथ, ओके। 109 है ना, तो अभी 20 करो। 20 कल 20 करना है आपको, ठीक है। टुमारो यू हैव टू डू 20, ठीक है। ठीक है, चलो अभी अभी आप लोग HCV का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 अटेंड करो अभी। 21 और 22 अभी करो, अभी डिस्कस करेंगे ये हम लोग 21 और 22। HCV नहीं है? HCV नहीं है आपके पास? मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। I'll give you the question. तो 1 minute, I'll give you the question. ओके, सो ये होमवर्क आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ओके, सब लोग होमवर्क नोट डाउन कर लो, या ओके। आई विल सेंड यू, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द PDF, ओके। तो अभी लिखो आप इसका क्वेश्चन नंबर 21 में बताता हूँ आपको। देखो 21, सब लोग लिखो क्वेश्चन। So from tomorrow we'll start friction, okay? From tomorrow we'll start friction. A force F is equal to V cross A. A force F is equal to V cross A is exerted on a particle. Is exerted on a particle. Is exerted on a particle in addition to the force of gravity. In addition to the force of gravity, ठीक है। Where V is the velocity, where V is the velocity of the particle, where V is the velocity of particle and A is a constant vector, and A is a constant vector of vector in the horizontal direction, in the horizontal direction, okay, in the horizontal direction. With what minimum speed? With what minimum speed
A particle of mass m be projected. A particle of mass m be projected. Particle of mass m be projected so that it continues to move. So that it continues to move. Continues to move undeflected. Move undeflected with a constant velocity. सब लोग ये क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो. Everyone please try this question.
ओके, सबने ट्राई कर लिया? सबने ट्राई किया? ओके, mg by a. ओके, चलो विल डिस्कस फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे काफी वेक्टर वगैरह इन्वॉल्व है, तो लेट अस डिस्कस दिस। तो आपको दिया फोर्स F is equal to V cross A is exerted on a particle in addition to the force of gravity. V is the velocity and A is the constant vector. So what we will do is, सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पे कि आपको बोला है कि फोर्स इज इक्वल टू V क्रॉस A। ठीक है, जस्ट लाइक यू हैव द, आपने वेक्टर्स में आपको याद होगा, वेक्टर में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास R वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस Q है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि R इज परपेंडिकुलर टू P, R is perpendicular to Q, R is perpendicular to the plane, perpendicular to the plane containing P and Q। ठीक है, वो आपको याद होगा, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तो मान लो ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो R वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, P के भी और Q के भी। ठीक है, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे जो F है, F is perpendicular to V and F is perpendicular to A। ओके, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, देखो आपको क्वेश्चन में दिया है, ये है, तो एक पार्टिकल है, तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? इस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल पे लग रहे हैं बहुत सारे फोर्सेस। एक तो बोल रहा है वो कि v is the velocity and a is a constant vector in the horizontal direction। तो a जो है, a वेक्टर को इधर ले लो, a वेक्टर इधर है, मान लो a वेक्टर, ठीक है, और वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी वेक्टर मान लो, ऐसा है कुछ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो f वेक्टर क्या आएगा? ये इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है, एक ही प्लेन में दोनों, ऐसा मान लो। तो mg वेक्टर किधर होगा? mg वेक्टर इधर होगा, ठीक है, ये हो गया mg वेक्टर, यानी ये एक फोर्स वेक्टर हो गया। तो जो फोर्स है उसको मैं दिखाऊंगा रेड कलर से, क्योंकि दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये फोर्स लग रहा है mg और एक लग रहा है v क्रॉस ए। तो v क्रॉस ए ऊपर होना चाहिए ऐसा, तभी वो बैलेंस होगा, यानी f ऐसा ऊपर होना चाहिए v क्रॉस ए, राइट। तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू v, परपेंडिकुलर टू a, और ऐसा होना चाहिए, तभी वो नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है, राइट। आप v क्रॉस ए करके देखो, v क्रॉस ए कहाँ आएगा? जैसे यहाँ पे आप देखो, ये p क्रॉस q, p क्रॉस q कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है। p क्रॉस q कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है, देखो। तो ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, ऐसे ये v क्रॉस ए, v वेक्टर a वेक्टर। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तब वो क्या होगा? तब क्या होगा? तब पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा लिखा था ना हमने क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था? द पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, अनडिफ्लेक्टेड मतलब समेशन ऑफ नेट फोर्स जीरो,
ठीक है, समेशन ऑफ नेट फोर्स 0 जब होगा तब वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो F क्रॉस A है, F cross A and mg, they should be equal and opposite. So undeflected means what? Undeflected means no change in direction. No change in direction. There is no change in direction. So no change in direction. Undeflected means no change in direction. Okay. So there is no change in direction. So इसके मतलब ये हो गया कि जो ये अपना V क्रॉस A है, राइट, V क्रॉस A, तो F का मॉड शुड बी इक्वल टू mg का मॉड। F का मॉड क्या होगा? F का मॉड होगा VA साइन थीटा, राइट। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे A क्रॉस B होता है, तो A क्रॉस B का मॉड क्या होता है? AB साइन थीटा, है ना, इसका मॉड। तो ये होगा VA साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? mg। तो ये हो जाएगा यहाँ से V हो जाएगा mg बाई A साइन थीटा, ठीक है। अब आपको V मिनिमम चाहिए, तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया है तो आपको मिल गया है V इज इक्वल टू mg बाई A साइन थीटा। तो अब यहाँ पे फॉर V टू बी मिनिमम, V टू बी मिनिमम क्या होना चाहिए? V टू बी मिनिमम साइन थीटा हैज टू बी मैक्सिमम, साइन थीटा हैज टू बी मैक्सिमम, ठीक है। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? +1। तो +1, तो आपने अगर साइन थीटा को +1 डाला तो V आएगा mg बाई A। तो mg बाई A इज द आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है तो बोलो। तो देख लो एक बार, ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे।
सब लोग प्लीज नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो। मैं यही बोल रहा हूँ, बस नोट डाउन करने बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एवरीवन प्लीज नोट डाउन। 3 फोर्स है ही नहीं, 2 फोर्स है भाई। 3 फोर्स है ही नहीं, 2 फोर्स है बस। एक ये और एक ये, 2 ही फोर्स है, 3 फोर्स है ही नहीं। ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए ना, इनका मॉड बैलेंस, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तब तो ये कैंसिल होगा, तब तो नेट फोर्स जीरो होगा, तब तो ये ऐसे जाएगा अनडिफ्लेक्टेड, इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड, it has to go undeflected. For that the net force has to be zero, it has to go undeflected, so for that the net force has to be zero. नेट फोर्स जीरो होने के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट तो है ही है वो पहले से, इक्वल भी होना चाहिए। और 2 फोर्स लग रहे हैं, 3 नहीं लग रहे, सिर्फ 2 ही फोर्स है। ये योगेश्वरी आप क्या कह रहे हो, 3 डिफरेंट फोर्स नहीं है? सबने लिखा क्या, या मैं फिर से बताऊं? सबने लिख लिया? सबने नोट डाउन कर लिया ना, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, चलो अब लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे डिलीट हो गया सब कुछ, कैसे?
Okay. Let us take the next question, question number 22. Okay. So I'll tell you the next question, question number 22. So please try. Okay, 22 will be a homework. 23, 24 I'll give it. I'll give it question number 24. Okay. So let us do question number 24. ठीक है HCV. So 24 में आपको दिया है ऐसा डायग्राम दिया है, एक पुली है इधर और यहाँ से ये एक ब्लॉक है तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का लेंथ है 30 सेंटीमीटर. ठीक है, ब्लॉक का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ से ये दूसरा पुली है. ठीक है, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 20 न्यूटन. या नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन एवरीवन. 20 न्यूटन और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 32 न्यूटन. ठीक है, ओके. तो आपसे क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये जो 20 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, ये तो फाइंड द फोर्स exerted by the 20 centimeter part of the rod, by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. ठीक है, ये सवाल है, सब लोग ट्राई करो इसको. ठीक है, इसका मास दिया है 3 kg, टोटल मास दिया है 3 kg. ओके, और ये यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस पे रखा है ये दो पुलीज है. इसका मास हुआ 1 kg, इसका मास हुआ 2 kg. ठीक है, टोटल मास है 3 kg. चलो सब लोग ट्राई करो, एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट.
ओके, सबने किया अटेम्प्ट? अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? क्या आंसर आया आप लोगों का? ओके, सबने ट्राई किया, क्या आंसर आया आप लोगों का? प्लीज टेल योर आंसर्स। यस, किसी का आंसर आया? Did anyone get the answer? हेलो? 14 नहीं, 24 आंसर आना चाहिए, 24। चलो, we'll discuss this, let us discuss this। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो ब्लॉक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेनी ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। ये जो आप देख रहे हो, राइट, तो यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन होगा 32, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो आप फोर्स लगाओगे ना, वो फोर्स जो लगाओगे, तो वो फोर्स जितना होगा उतना टेंशन क्रिएट होगा। तो स्ट्रिंग में इधर टेंशन होगा 32, और इधर जो टेंशन है, वो टेंशन यानी T1, वो होगा 20 न्यूटन। इसका टोटल मास कितना है? 3 kg। तो आप लिखोगे T2 माइनस T1, ये प्लस ये माइनस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 32 माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना है? 3 इंटू एक्सेलरेशन। 12 इज इक्वल टू 3a। तो ये हो जाएगा 3 4 12। एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब आप ले लो 1 kg। अब आप 1 kg वाला ब्लॉक ले लो, ये 1 kg वाला। तो अगर आपने 1 kg वाला ब्लॉक लिया, तो इधर क्या लग रहा है? इधर लग रहा है 20 न्यूटन, और इधर इधर जो लग रहा है उसको मान लो T। तो इधर लग रहा है T, और इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन आएगा 4। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? ये वाला प्लस ये माइनस, ये T आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा T माइनस 20 इज इक्वल टू ma। सो T माइनस 20, m कितना है? m है 1, a कितना है? 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T इज इक्वल टू 20 प्लस 4, मतलब T इज इक्वल टू 24 न्यूटन। ठीक है, आप चाहो तो 2 kg वाला ब्लॉक भी ले सकते हो। आप 2 kg वाला ब्लॉक लेके भी कर सकते हो। ठीक है, आप 2 kg वाला ब्लॉक भी लेके कर सकते हो। तो 2 kg वाला ब्लॉक
2 kg वाला ब्लॉक अगर आपने लिया तो देखो ये होगा 2 kg वाला ब्लॉक, तो उसके इधर उसका रिएक्शन लगेगा। ये जो 1 kg वाला है उस पे इधर टी लगा था तो इस पे इधर टी लगेगा और इधर लगेगा 32 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है इसका 4। ये होगा प्लस, एक्सेलरेशन इधर है ना, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो आप क्या लिखोगे 32 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो 32 माइनस टी, एम कितना है, एम है 2, ए कितना है 4, तो टी कितना आएगा 32 माइनस 8 यानी 24। ओके, तो ये देखो प्रीवियस स्लाइड, ये है प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। अब कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है, इफ यू वेरी डाउट आस्क। ओके, yeah, okay, so see the next slide now. Okay, yeah, so I think everybody understood, ठीक है, सबको समझ में आ गया ये। ओके, ओके, so ठीक है, अंडरस्टूड, चलो वेरी गुड, everybody understood, that's very nice. Okay, so your homework is, होमवर्क जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 15, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29। प्लीज नोट डाउन, ये एचसीडी के क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, एवरीवन प्लीज नोट डाउन। आई थिंक ये कर लिया आपने, ये 26 और 7 डिस्कस हो चुका है, ये डिस्कस हो चुका है। और आपको करना है 42, या बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, yes, I will send the PDF, don't worry, I will send the PDF. Okay, okay, so please do these questions, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, एंड प्लस मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, एक्सरसाइज 1 जो है, एक्सरसाइज 1 आपका बुकलेट का जो एक्सरसाइज 1 है
उसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करना है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ का। So please note down your homework. Okay. So from tomorrow we will start friction. From tomorrow we will start friction. Okay. So first 45 minutes we will study friction and next 45 minutes we will discuss. ठीक है, 45 मिनट्स हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट 45 मिनट्स हम क्या करेंगे, डिस्कशन। ओके, ठीक है, so I'll send this PDF to you. Yeah, okay, so now you can leave. Okay, so we'll end the class here. All right. अगर किसी को डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, if you want to ask some doubt you can ask. If you want to ask some doubt you can ask. Okay. Yeah, if you want to ask something you can ask. Okay, otherwise you can leave. Yeah, I'll send the PDF, don't worry. Bye bye. 21 में मॉड क्यों लिया, मॉड इसलिए लिया क्योंकि आप मॉड, मॉड मतलब क्या होता है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मॉड मतलब क्या है, मॉड मतलब है मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष समझ में आया आपको, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी वो क्लियर होगा, तभी वो कैंसिल होगा ना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, इसकी वजह से, ठीक है, ओके, ठीक है।